بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني، يا عليم علمني، يا عليم علمني، يا عليم علمني. الحمدللہ، ہمارا علمی میراث کورس جو ہے اس کے 7 سبق ہو چکے تھے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، میں نے بتایا تھا کہ علم میراث کورس کی جو اس علم میراث کورس کا جو خاکہ ہے، خلاصۃ المیراث، معرفت الورثہ، توصیل الحقوق اور متفرقات. خلاصۃ المیراث وہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اسی طرح معرفت الورثہ اس میں ذوی الفروض بھی پڑھ لیے تھے، اور اسی طرح عصبات بھی پڑھ لیے تھے. آج انشاءاللہ ذوی الارحام پڑھ لیں گے، اور پھر اس کے بعد توصیل الحقوق کا آغاز کر دیں گے. تو ذوی الارحام جو ہے اس کے 4 اصناف ہیں. ذوی الارحام کے کتنے اصناف ہیں؟ 4 اصناف ہیں، یعنی 4 مختلف قسمیں بنتی ہیں. نمبر 1، میت کی فرع. نمبر 1 کیا ہے؟ میت کی فرع، یعنی میت کے جو اجزاء ہے، اس میں کون میت کی طرف منسوب ہو. وہ افراد جو میت کی طرف منسوب ہو، جیسے بیٹیوں کی اولاد، نواسے اور نواسیاں جو ہے یہ ذوی الارحام میں سے ہے. پوتیوں کی اولاد، بیٹیوں کی اولاد اور پوتیوں کی اولاد، یہ ذوی الارحام میں سے ہے. نمبر 2، میت کی اصل. میت کی اصل جن کی طرف میت منسوب ہو، جن کی طرف میت کیا ہو، منسوب ہو، جیسے جد فاسد یعنی نانا. اسی طرح جدہ فاسدہ یعنی نانی کی ماں، یہ میت کی اصل میں شامل ہے یہ افراد. ٹھیک ہے، جدہ فاسدہ اور جدات فاسدات. نمبر 3، میت کے اب اور ام کی فرع. میت کے اب اور ام کی فرع یعنی میت کے والدین کی طرف منسوب ہو، جیسے بہنوں کی اولاد. بہنوں کی اولاد یعنی بانجے بانجیاں، بھائیوں کی بیٹیاں. بھائیوں کی بیٹیاں جن کو بھتیجیاں کہتے ہیں، اور ماں شریک بھائی کے بیٹے. ماں شریک بھائی کے بیٹے، خیفی بھتیجے جسے کہتے ہیں. حقیقی بھتیجے اور باپ شریک بھتیجے وہ تو عصبات میں سے ہے، لیکن خیفی بھتیجے جو ہے، ماں شریک بھائی کے بھتیجے جو ہے، وہ ذوی الارحام میں سے ہے. نمبر 4، میت کے جد اور جدہ کی فرع. میت کے جد اور جدہ کی فرع، جیسے میت کے جدین دادا نانا، جدتین دادی نانی کی طرف منسوب ہو. میت کے جدین اور جدتین کی طرف منسوب ہو، جیسے عام میں خیفی، اخیافی چچا، عمات پھوپھیاں، اخوال ماموں، خالات خالائیں اور ان کی اولاد. تو یہ ذوی الارحام کی 4 اصناف ہے. میت کی فرع جیسے نواسے نواسیاں اور پوتیوں کی اولاد. میت کی اصل جیسے نانا اور نانی کی ماں. اور میت کے اب اور ام کی فرع جیسے بھانجے بانجیاں، بھتیجیاں اور خیفی بھتیجے. اور میت کے جد اور جدہ کی فرع جیسے اخیافی چچا، پھوپھیاں، ماموں، خالائیں اور ان کی اولاد. یہ ذوی الارحام کی 4 اصناف ہے. یہ کیا ہے؟ ذوی الارحام کی 4 اصناف ہے. ذوی الارحام کی کتنی اصناف ہے؟ 4 اصناف ہے. ٹھیک ہے بھائی. اب اسی کو عربی میں بیان کیا ہے. فَأَمَّا ذَوِي الْأَرْحَامِ فَهُوَ عَلَىٰ 4 أَصْنَافٍ. بہرحال ذوی الارحام جو ہے یہ 4 اصناف پہ مشتمل ہے، 4 قسموں پر مشتمل ہے. یہ کیا ہے؟ 4 قسموں پر مشتمل ہے. نمبر 1، الصنف الاول ما ينتمي الى المیت. پہلی صنف جو ہے، پہلی قسم جو ہے کہ ما ينتمي الى المیت، جو میت کی طرف منسوب ہو. وهم اولاد البنات و اولاد بنات الابن. اولاد البنات یعنی نواسے نواسیہ، و اولاد بنات الابن اور پوتیوں کی اولاد. نمبر 2، الصنف الثانی، دوسری صنف جو ہے، ما ينتمي الیہم المیت، کی میت جن کی طرف منسوب ہوتا ہے. وهم الاجداد الساقطون، یعنی جد فاسد جو ہے، جد فاسد جس کو نانا کہتے ہیں. الجدات الساقطات، نانی کی ماں.
नंबर 3 الصنف الثالث ما ينتمي إلى أبوي الميت، जो मैयत के वालिदैन की तरफ मंसूब हुआ, हुआ औलादुल अखवात, यानी बेटियों की औलाद जो है, ठीक है, औलादुल अखवात बेटियों की औलाद यानी भांजे भांजिया, व बनातुल इख्वा और भाइयों की बेटियां यानी भतीजियां, व बनुल इख्वा लिउम्मिन और माँ शरीक भाई का बेटा जो है, कैफी भतीजा जिसे कहते हैं। الصنف الرابع ما ينتمي إلى جدي الميت أو جدتيه، जो मैयत के जद यानी दादा नाना और जद्दतई दादी नानी की तरफ मंसूब हुआ, हुमुल अम्मात, अम्मात से मुराद फुफियाँ, वल अहमाम लिउम्मिन कैफी चचा, वल अखवाल वल खालत मामू और खालें और उनकी औलाद, ये अरबी में भी बता दी है, ठीक है। यहाँ पर पहुंच के हमारी जो पहली किस्म है वो मुकम्मल हो जाती है। यहाँ पहुंच के हमारी जो पहली किस्म है वो क्या हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी, यानी मारिफतुल वरासा जो है वो हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हमारी दो चीजें हमने पढ़ ली, खुलासतुल वीरास और मारिफतुल वरासा। खुलासतुल मीरास और मारिफतुल वरासा, ये दोनों हमने क्या कर लिए, मुकम्मल कर लिए, पढ़ लिए। अब तीसरी बहस जो है तौसीलुल हुकूक इला मुस्तहिक़ीहिम, तौसीलुल हुकूकी इला मुस्तहिक़ीहिम, यानी वरसा को उनका हिस्सा पहुंचाने का तरीका। अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि हर वारिस का क्या क्या हिस्सा बनता था, निस्फ किसको मिलता है, सुदुस किसको मिलता है, सुमुन किसको मिलता है, रुबा किसको मिलता है, सुलुसान किसको मिलता है, सुलुस किसको मिलता है। तो ये छह जो के जो है, छह के छह जो हिस्से थे वो हमने पढ़ लिए किसको क्या मिलता है, ठीक है। अब जिसको सुदुस मिलता है, रुबा मिलता है, वो पहुंचाना कैसे है उसको। अब एक शख्स का इंतकाल हो गया, अब उसके वरासा में एक को सुदुस मिल रहा है, एक को निस्फ मिल रहा है और एक को रुबा मिल रहा है। अब ये इसको मिलेगा कैसे, पहले किसको निस्फ देंगे, पहले किसको सुदुस दे देंगे, ये सारी तफसील जो है तफसील हुकूक में हम पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो फिक़ह का हिस्सा था। अब जो आगे हम पढ़ेंगे इसका ताल्लुक रियाजी के साथ होगा। इसका ताल्लुक किसके साथ होगा, ज्यादातर ताल्लुक इसका रियाजी के साथ है, अगरचे बाज मबाहिस इसमें भी फिक़ह से मुतालिक है। तो वरासा को उनका हिस्सा पहुंचाने का तरीका जो है 10 मबाहिस पे मुश्तमिल है। ये कितनी चीजों पे मुश्तमिल है, 10 मबाहिस पर। नंबर एक, दो अददों के दरमियान निस्बत। नंबर दो क्या है, नंबर एक, दो अददों के दरमियान निस्बत। नंबर दो, मसला बनाने का तरीका। नंबर तीन, तरका तकसीम करने का तरीका। नंबर चार, फीसद निकालने का तरीका। नंबर पाँच, तसहीह। नंबर छः, रद्द। नंबर सात, मुनासखा। नंबर आठ, तखारुज यानी दस्तबरदारी। नंबर नौ, दैन मुहीत। और नंबर 10, मुकासमतुल जद, ठीक है। इसमें से हम नौ पढ़ लेंगे, ठीक है। मुकासमतुल जद ये वैसे लफ्जी बहस है, इसकी अमली तौर पे जरूरत नहीं पड़ती, तो बाकी नो हम इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, बाकी नो हम पढ़ लेंगे, वो बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहली बहस जो है, दो अददों के दरमियान निस्बत। दो अदद हों उनके दरमियान चार किस्म की निस्बत होती है। उनके दरमियान कितनी किस्म की निस्बत होती है, चार किस्म की निस्बत होती है। नंबर एक, तमासुल। नंबर एक क्या है, तमासुल। अल्फाज से जाहिर होता है कि मुतमासिल हो, हम मिसल हो, यानी दोनों आदद एक दूसरे के बराबर हो। जैसे दो एक आदद है, दूसरा दो दूसरा आदद है, दो आदद हो गए, इन दोनों के दरमियान निस्बत क्या है, तमासुल है। इन दोनों के दरमियान निस्बत क्या है, तमासुल है, ठीक है। नंबर दो, तदाखुल। तदाखुल का लफ्जी माना जब हम देखते हैं एक दूसरे में दाखिल होना, एक दूसरे में क्या होना, दाखिल होना, लफ्जी मतलब है। यानी बड़ा आदत छोटे आदत पे पूरा तकसीम हो सकता हो, यानी बड़ा आदत छोटे आदत पे तकसीम हो सकता हो, या दूसरी ताबीर कर ले कि छोटा आदत बड़े आदत में दाखिल हो सकता हो। लेकिन अच्छी ताबीर यही है कि बड़ा आदत छोटी आदत पे पूरा तकसीम हो सकता हो, या छोटा आदत बड़े आदत को मुकम्मल तकसीम कर सकता हो। जैसे दो और चार है, दो छोटा आदद है, चार जो है बड़ा आदद है। अब चार को दो पे तकसीम करें, पूरा पूरा तकसीम हो जाता है।
4 को 2 पे तकसीम कर लें तो मुकम्मल क्या हो जाता है, तकसीम हो जाता है। तो इन दोनों के दरमियान कौन सी निस्बत है, तदाखुल की निस्बत है। इन दोनों के दरमियान कौन सी निस्बत है, तदाखुल की निस्बत है। नंबर 3 तवाफुक। नंबर 3 क्या है, तवाफुक, यानी दोनों आदात का एक दूसरे के मुवाफिक होना, किसी बात पे मुवाफकत करना। क्या मतलब, दोनों आदत एक दूसरे पे तकसीम नहीं हो सकते, आपस में एक दूसरे पे तकसीम नहीं हो सकते, बल्कि तीसरे अदद पे दोनों तकसीम हो सकते हो। तीसरे अदद पे दोनों क्या हो सकते हो, तकसीम हो सकते हो। दोनों आदत आपस में एक दूसरे पे तकसीम तो नहीं हो सकते, लेकिन तीसरे आदत पे वो दोनों क्या हो सकते हैं, तकसीम हो सकते हैं। जैसे 4 और 6 है, 4 और 6 है, इन दोनों को आपस में तकसीम कर ले तो मुकम्मल तकसीम नहीं हो सकेंगे। 6 को 4 पे तकसीम कर ले, मुकम्मल तकसीम नहीं होगा, बल्कि इशारिया दरमियान में आ गया। 4 को 6 पे तकसीम कर ले, मुकम्मल तकसीम नहीं होंगी, इशारिया दरमियान में आ जाएगा। ठीक है। तो एक तीसरा आदद है, एक तीसरा आदद है जिन पे ये दोनों मुवाफकत करते हैं। एक तीसरे अदद पे क्या करते हैं, दोनों मुवाफकत करते हैं। तीसरा आदद क्या है, 2 है। अब ये दो ऐसा आदत है कि ये दोनों मुवाफिक है इस पर। 6 को 2 पे तकसीम करें तो जवाब क्या आता है, 3 आता है। 4 को 2 पे तकसीम कर लें तो जवाब क्या आता है, 2 आता है। 2 आता है, ठीक है। तो ये तीसरा आदत 2 है, इसमें ये दोनों पूरे पूरे तकसीम हो रहे हैं, दोनों पूरे पूरे तकसीम हो रहे हैं। एक और लफ्ज हम बोलते हैं वफक, ये हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, वफक, ठीक है। तो तकसीम करने के बाद जो जवाब आए उसे वफक कहते हैं। आसान सा तर्जुमा ये कि तकसीम करने के बाद जो जवाब आए वो उस आदत का वफक कहलाता है। अब ये 6 को 2 पे तकसीम कर दिया, जवाब आ गया 3, तो 6 का वफक क्या है, 3 है। 4 को 2 पे तकसीम कर दिया, जवाब आ गया 2। अब ये 2 जो है 4 का वफक है। तो वफक की तारीफ क्या हो गई, तकसीम करने के बाद जो जवाब है वो उस आदत का वफक कहलाता है, वो उस आदत का क्या कहलाता है, वफक कहलाता है। नंबर 4 तबायुन, एक दूसरे के मुखालिफ होना। मतलब दोनों आदत किसी पर भी तकसीम ना हो सकते हो, ना आपस में तकसीम हो सकते हैं मुकम्मल तौर पे, और ना किसी तीसरे आदत पे तकसीम हो सकते हैं, और ना किसी तीसरे आदत पे तकसीम हो सकते हैं। जैसे 3 और 5, जैसे 3 और 5, अब ये दोनों आपस में भी तकसीम नहीं हो सकते, और तीसरे आदत पे भी तकसीम नहीं हो सकते, और तीसरे आदत पर भी तकसीम नहीं हो सकती, तीसरे आदत पर भी तकसीम नहीं हो सकती। बात समझ आ गई। तो दो आदात के दरमियान 4 किस्म की निस्बत होती है, या तमासुल होगी, या तदाखुल होगी, या तवाफुक होगी, या तबायुन। तमासुल से मुराद दोनों आदत एक दूसरे के बराबर हो, हम मिसल हो, जैसे 2 और 2। तदाखुल का मतलब होता है कि बड़ा आदत छोटे आदत से पूरा तकसीम हो सकता हो, जैसे 2 और 4। तवाफुक का माना होता है दोनों आदत आपस में एक दूसरे में पूरे तकसीम नहीं हो सकती, लेकिन तीसरे आदत पे दोनों तकसीम हो सकते हैं, जैसे 6 और 4। तबायुन, दोनों आदत किसी पे तकसीम ना हो सकते हो, जैसे 3 और 5। वफक, तदाखुल की सूरत में हासिल तकसीम को वफक कहते हैं, यानी जो जवाब है, ठीक है। इसे 8 को 2 पे तकसीम कर लें तो 4 हासिल तकसीम आता है, इस 4 को 8 का वफक कहेंगे। तवाफुक की सूरत में तीसरे अदद पे तकसीम करने की सूरत में जो जवाब आए वो उस अदद का वफक कहलाएगा, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जैसे 6 और 4, तीसरे अदद 2 पे पूरे तकसीम होते हैं। 6 को 2 पे तकसीम करें 3 जवाब आता है, तो ये 3 6 का वफक है, और 4 को 2 पे तकसीम करने से 2 जवाब आता है, तो ये 2 4 का वफक है। अब इसी को अरबी में बयान किया, अल-मबहसु सालिसु फी तौसील अल-हुकूकी इला मुस्तहिक़ीहिम। तीसरी बहस जो है वो हुकूक को पहुंचाना है उनके वरासा की तरफ, हिस्सों को पहुंचाना है उनके वरासा को जो मुस्तहिक वरासा है। उसमें पहली बहस जो है अन-निस्बतु बैनल अददैन, दो अददों के दरमियान निस्बत है। नंबर 1 तमासुलुल अदैन, कौन अहदिहिमा मुसावियन लिल आखर। तमासुलुल अददैन से मुराद उनमें से एक का दूसरे के बराबर होना। नंबर 2 तदाखुल अददैन, दो अददों के दरमियान तदाखुल का होना। अय्यन कसिम अल अक्सर अल अक़ल बिला कसरिन, कि अक्सर जो है अकल पे बगैर किसी कसर के तकसीम हो जाए। नंबर 3 तवाफुकुल अददैन, दो अददों का एक दूसरे के मुवाफिक होना, यानी अय्यन कसिम अला अददिन सालिसिन, की
दोनों आपस में एक दूसरे पे पूरे तकसीम नहीं हो सकते, लेकिन वो दोनों तीसरे अदद पे तकसीम हो सकते हैं। नंबर 4 तबायुनुल आददैन, दो अददों के दरमियान तबायुन का होना। अल्ला यनक़सिम अहदुल अददैन अलल आखर इल्ला बिल कसर, कि वो दोनों आदत जो है तकसीम ना हो सकते हो दूसरे पर मगर ये कि कसर के साथ, मगर ये कि वो किसके साथ, कसर के साथ। बात समझ आ गई। अब दूसरी बहस जो है मसला बनाने का तरीका, ये इतना काफी है, ये आगे भी पढ़ लें। मसला बनाने का तरीका पढ़ लें या कल के लिए छोड़ लें? जी बता दें। सो तो नहीं गए भाई आप लोग? भाई जवाब नहीं आ रहा, सो गए लगता है। आगे पढ़ लें थोड़ा सा। चलें। चलिए ये पढ़ लेते हैं, मसला बनाने का तरीका पढ़ लेते हैं, ठीक है। मसला बनाने का तरीका आपको बता चुका हूं कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 6 हिस्से जिक्र फरमाए हैं। इनको हमने तो दो कैटेगरीज में तकसीम किया है। नौ अव्वल यानी पहला ग्रुप, इसमें निस्फ आता है आधा, 1/2, 1/2। इसका मखरज जो है, बटे के नीचे जो आदत होता है उसको मखरज कहते हैं। इसका मखरज जो है 2 है। निस्फ का मखरज क्या है? 2 है। ठीक है। आगे फिर उसके बाद ये दो, आप मिसाल भी दे देना कि एक चीज के दो हिस्से कर दिए, एक हिस्सा जो है वो निस्फ है। रुबा चौथाई, 1/4। अब ये जो बटे के नीचे 4 है ये इसका मखरज है, ठीक है। ये 4 जो है रुबो का मखरज 4 है। मसलन एक चीज के 4 हिस्से कर दिए, उसका एक हिस्सा जो है रुबो कहलाता है। सुमन 8वें हिस्से को कहते हैं, यानी 1/8, 1/8। अब सुमन का मखरज क्या है? 8। मखरज का मैंने बताया कि नीचे जो होता है बटे के, उसको मखरज कहते हैं। जैसे एक चीज के 4 हिस्से कर दिए, 4 हिस्से आपको नजर आ रहे हैं, और ये ब्लू कलर में जो है ये 8वां हिस्सा होगा। एक हिस्सा जो है वो सुमुन 8वां हिस्सा कहलाएगा। तो ये सुमुन का मखरज 8 है। दूसरे ग्रुप में नवासानी में सुलुस है, 1/3, 1/3। इसका मखरज जो है 3 है, यानी एक चीज के 3 हिस्से कर दिए, तीसरा हिस्सा जो है वो क्या कहलाएगा? सुलुस कहलाएगा। सुलुसान 2/3 यानी 2/3। एक चीज के 3 हिस्से कर दिए, उसके 2 हिस्से जो है वो सुलुसान कहलाएंगे, इसका मखरज भी 3 है। सुदुस छठा हिस्सा, यानी एक चीज के 6 हिस्से कर दे, एक हिस्सा जो होगा वो छठा हिस्सा कहलाएगा, और सुदुस का मखरज जो है 6 है। ये तो आप लोगों को आते हैं, पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ। अब जो आगे असल चीज जो है अभी आज जो हमने समझनी है, ये बहुत जरूरी है। ये हर मसले में इसकी जरूरत है। ये सुमन, इसका मखरज 2 है। मखरज के बारे में मैंने बताया कि बटे के नीचे जो होता है वो मखरज होता है। रुबा का मखरज 4 है, सुमन का मखरज 8 है, और इसी तरह सुलुस का मखरज जो है 3 है, सुलुसान का मखरज भी 3 है, सुदुस का मखरज भी 6 है। सुदुस का मखरज क्या है? 6 है, ठीक है। इसमें ये भी देख लें कि सबसे बड़ा जो है ये सो निस्फ है। इसमें जो है नौ अव्वल में सबसे बड़ा निस्फ है, फिर उसके बाद रुबा है, फिर उसके बाद सुमन है। यानी सबसे छोटा जो है वो सुमन है, दूसरे नंबर पे छोटा रुबा है, और सबसे बड़ा जो है निस्फ है। और यहाँ पे भी सुलुस बड़ा है, ठीक है, और सुदुस सबसे छोटा है। सुदुस क्या है? सबसे छोटा है। तो अब इसके लिए कुछ कवायद, 3 कवायद है इसके लिए, 3 फार्मूलाज है हमारे पास। हमारे पास कितने फार्मूले हैं? 3 फार्मूले हैं। नंबर 1, इनको फुरूज कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? फुरूज, हिस्से मुराद है, ठीक है। अगर इन 6 फुरूज में से अकेला कोई एक मसले में आ जाए, मसला वो जो मैयत हम इस तरह लिखते हैं, ये मसला कहलाता है। ये जो मैयत हम लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? मसला। यानी अगर इन 6 हिस्सों में से एक ही आ जाए, एक बंदे का इंतकाल हो गया और इन 6 हिस्सों में से निस्फ आ जाए, सिर्फ निस्फ आ जाए, सिर्फ सुमन आ जाए, सिर्फ सुदुस आ जाए, बाकी कोई भी ना हो, इन 6 हिस्सों में से एक हिस्सा आ जाए, इन 6 हिस्सों में से एक हिस्सा आ जाए, तो उस फर्ज के मखरज से मसला बनाएंगे। तो मसला किससे बनाएंगे? फर्ज के मखरज से। जो भी हिस्सा होगा
निस्फ आ गया तो उसका मखरज क्या होगा, 2 होगा, उससे मसाला बना देंगे। और रुबु आएगा, उसका मखरज क्या होगा, 4 होगा, उससे मसाला बना देंगे। तुमुन आएगा तो उसका मखरज 8 है, उससे हम मसाला बनाएंगे। तो पहला फार्मूला ये हो गया कि अगर इन 6 हिस्सों में से कोई हिस्सा आ जाए मसले में तो मसाला किससे बनाएंगे, उसी हिस्से के मखरज से मसाला बना देंगे। अब मिसालें आपके सामने आ रही हैं कि मैयत है, निस्फ जो है वो हिस्सा आ गया, 6 हिस्सों में से सिर्फ निस्फ है, तो निस्फ का मखरज 2 है, हमने मसाला बना दिया 2 से, ऊपर जो हमने लिख दिया ये मसाला बना दिया। एक शख्स का इंतकाल हो गया और उसके वारिस को रुबु मिल रहा है, तो पहला फार्मूला लागू होगा, जो हिस्सा यहाँ पे है उसके मखरज से मसाला बना देंगे। रुबु का मखरज 4 है, 4 से मसाला बना दिया। सुमन है, सुमन का मखरज 8 है, 8 से मसाला बना दिया। सुलुस है, सुलुस का मखरज 3 है, 3 से मसाला बना दिया। सुलुसान है, सुलुसान का मखरज 3 है, 3 से मसाला बना दिया। सुदुस है, सुदुस का मखरज 6 है, 6 से हमने मसाला बना दिया। ठीक है, ये फिर अब पहला फार्मूला समझ में आ गया कि अगर 6 हिस्सों में से कोई एक हिस्सा आ जाए मसले में तो उसके मखरज से मसाला बनाया जाता है, उसके मखरज से मसाला बनाया जाता है। दूसरा फार्मूला, यहाँ पे तो एक ही था, अगर मुतादद आ जाए क्या आ जाए, मुतादद आ जाए, एक से ज्यादा आ जाए, एक से क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए, एक से क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए। तो अब इसकी फिर दो सूरतें बनती है, एक से ज्यादा आने की सूरत में भी क्या बनती है, दो सूरतें बनती है। ये एक तो ये है कि पहले ग्रुप वाले आपस में मिल के आ जाए, मिक्स आ जाए, पहले ग्रुप में से आपस में क्या आ जाए, मिक्स होके आ जाए, या दूसरे ग्रुप में से आपस में मिल के मिक्स होके आ जाए। ठीक है, तो अगर वो मुतादद एक ही नाव के हो, वो मुतादद क्या हो, एक ही नाव क्या हो, यानी नौ अव्वल में से 2 या 3 आ जाए, या नौ सानी में से 2 या 3 आ जाए, तो मसला उनमें से अकल यानी छोटे के मखरज से बना देंगे। मसला क्या बनाता है, बनाते हैं उनमें से अकल यानी छोटे के मखरज से बना देंगे, यानी उनमें से जो छोटा होगा उससे मसला बना दिया जाएगा। मसला निस्फ, रुबु और सुमुन है, निस्फ, रुबु और सुमुन है, निस्फ, रुबु और सुमुन है। तो ये किसी मसले में आ जाए तो सबसे छोटा सुमन है, उसके मखरज से हम मसला बना देंगे। निस्फ और रुबु आ जाए तो इनमें से छोटा क्या है, 4 है, रुबु है, तो 4 से मसला बना देंगे। रुबु और सुमन आ जाए, इनमें छोटा क्या है, सुमन है, तो 8 से मसला बना देंगे। मसला देखिए, निस्फ और रुबु है, इनमें छोटा क्या है, रुबु है, तो रुबु का मखरज 4 है, 4 से मसला बना दिया। निस्फ और सुमन आ गया, इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 8 है, सुमन है, तो सुमन के मखरज यानी 8 से मसला बना दिया। निस्फ, रुबु और सुमन, इनमें से छोटा कौन सा है, सुमन है, सुमन का मखरज 8 है, 8 से मसला बना दिया। सुलुस और सुलुसान, ये 3 से मसला बना देंगे, दोनों का मखरज क्या है, 3 है। सुलुस, सुलुसान और सुदुस है, तो छोटा क्या है, सुदुस है, तो सुदुस का मखरज 6 है, 6 से मसला बना दिया। तो ये फार्मूला भी समझ में आ गया। दूसरा फार्मूला कि अगर वो मुतादद एक ही नाव के हो तो उनमें से अकल यानी छोटे के मखरज से मसला बना देंगे। नंबर 3, तीसरा फार्मूला बड़ा अहम है, ज्यादा इस्तेमाल होता है। तीसरा फार्मूला ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो कैसे, कि अगर वो मुतादद हो, मुतादद आ जाए लेकिन पहला नाव दूसरे नाव के साथ आ जाए, यानी नौ अव्वल नौ सानी के साथ मिक्स होके आ जाए। तो अगर निस्फ जो है, पहले नौ में से क्या है, निस्फ है, दूसरे नौ के एक या सब के साथ आ जाए तो मसला 6 से बन जाएगा। पहले नौ में से क्या है, निस्फ है, और दूसरे नौ में से कोई एक सा हो, एक हो या दो हो, तो मसला किससे बनाया जाता है, 6 से। मसला निस्फ और सुलुस है, तो पहले नौ में से निस्फ है, दूसरे में से सुलुस है, तो मसला 6 से बनाया जाएगा। निस्फ है, सुलुसान और सुलुस है, पहली नौ में से निस्फ आ गया, दूसरी नौ में से कोई से दो है, मसला 6 से बनाया जाएगा। निस्फ है, सुलुसान है, सुदुस है, पहली नौ में से निस्फ है, तो मसला किससे बनाया जाएगा, 6 से। इसकी दूसरी सूरत, अगर पहली नाव में से रुबो हो, दूसरे नाव के एक या सब के साथ आ जाए तो मसाला 12 से बन जाएगा, जैसे रुबो और सुलुस हो, मसाला 12 से बन जाएगा। रुबो और सुलुस सुलुसान हो तो भी मसाला 12 से बन जाएगा।
रुबा, सुलुस और सुदुस हो, मसला किससे बन जाएगा? 12 से। तीसरा फार्मूला कि अगर पहली नाव में से सुमन हो, दूसरे नाव के एक या सब के साथ आ जाए तो मसला 24 से बनेगा। मसला किससे बन जाएगा? 24 से बन जाएगा। जैसे सुमन और सुलुस है, मसला 24 से बनेगा। ठीक है। सुमन, सुलुस और सुलुसान है, मसला 24 से बनेगा। सुमन, सुलुस और सुदुस है, मसला 24 से बनेगा। तो तीसरे फार्मूले का खुलासा ये हुआ कि अगर मुतअद्दिद यानी एक नौ दूसरी नौ के साथ मिक्स होके आ जाए, तो अगर पहली नौ में से निस्फ है और दूसरी नौ में से कोई भी हो, मसला 6 से बनेगा। पहली नौ में से रुबा हो, दूसरी नौ में से कोई सा भी हो, मसला 12 से बनेगा। अगर पहली नौ में से सुमुन है, दूसरी नौ में से कोई भी हो, तो मसला 24 से बनेगा। तो मसला बनाने का तरीका, तीन फार्मूले हैं कुल। पहला फार्मूला ये है कि इन 6 हिस्सों में से कोई एक आ जाए तो उसके मखरज से मसला बन जाएगा। अगर मुतअद्दिद आ जाए, यानी पहली नौ एक आपस में मिक्स आ जाए, दूसरी नौ आपस में मिक्स होके आ जाए, उनमें से जो छोटा होगा उसके मखरज से मसला बना देंगे। तीसरा फार्मूला ये है कि अगर पहली नौ दूसरी नौ के साथ मिक्स होके आ जाए, पहली नौ में से निस्फ हो, दूसरी नौ में से कोई भी हो, मसला 6 से बनेगा। पहली नौ में से रुबा हो तो मसला 12 से बनेगा। पहली नौ में से सुमन हो तो मसला 24 से बनेगा। मसला किससे बनेगा? 24 से बनेगा। अब इसी को अरबी में बयान किया गया है। अल मबहसुस्सानी फी बिना इल मसला, यहाँ पे अलिफ भी अलिफ लाम आ जाए, ठीक है। अल फुरूजुल मुक़द्दरतु फी किताबिल्लाहि तआला सित्ततुन व हिय अला क़िस्मैन। कुरान मजीद में जो हिस्से अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है वो 6 है और वो दो किस्मों पर मुश्तमिल है। अन्नउल अव्वल अन्निस्फ अर्रुबु अस्सुमुन, अन्नउल अस्सानी अस्सुलुस अस्सुलुसान अस्सुदुस। फ़इन जाअतिल फुरूज उहाद उहाद फल मिनल मखरज। फ़इन जाअतिल फुरूज, बस अगर आ जाए फुरूज यानी ये हिस्से उहाद उहाद, अकेले अकेले, तो मसला मखरज से बनाएंगे। वइन जाअ नौउन वाहिदुन बिदूनिल खल्त मअ नौइन आखर, और अगर एक ही नौ आ जाए दूसरी नौ से मिक्स हुए बगैर, फलमसअलतु मिन मखरजिल अकल, वो अकल यानी छोटे के मखरज से मसला बना देंगे। व इन इख्तलता, व इन इख्तलता, और अगर पहली नौ दूसरी नौ के साथ मिक्स होके आ जाए, फ़इन इख्तलता निस्फु मअ बाज़ नौइ सानी औ कुल्ली फमिन सित्ता, अगर निस्फ जो है वो मिक्स हो नौइ सानी के बाज़ के साथ या सब के साथ, तो मसला 6 से बनेगा। वइन इख्तलता रुबु मअ बाज़ सानी औ कुल्ली फमिन इस्नै अशर, और अगर रुबु जो है नौइ सानी के बाज़ या कुल के साथ मिक्स होके आ जाए तो 12 से मसला बनेगा। इन इख्तलत सुमुन मअ बाज़ सानी औ कुल्लिही, और अगर सुमुन जो है नौइ सानी के बाज़ या कुल के साथ मिक्स होके आ जाए, अगर तकून मिन अरबातिन व इशरीना, तो मसला 24 से बन जाएगा। मसला किससे बन जाएगा? 24 से बन जाएगा। तो आज के लिए ये सबक काफ़ी है। तो हमने तौसीलुल हुकूक इला मुस्तहिक़ीहिम, इसमें से हमने कितने पढ़ लिए? 2 मबाहिस पढ़ लिए। एक, 2 आदात के दरमियान निस्बत, और दूसरा मसला बनाने का तरीका। फिर कल इंशाल्लाह आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। तरह तकसीम करने का तरीका, फार्मूला निकालने का तरीका, ये सारी चीजें इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अब वो एक अमली तौर पे प्रैक्टिकली विरासत के मसाइल हल करने का तरीका हम सीखेंगे। प्रैक्टिकली अमली तौर पे हल करने का तरीका सीख लेंगे। आप रोजाना की बुनियाद पे प्रैक्टिस करते रहे हमारे साथ, ठीक है। और जो असबाक कभी तक अगर याद नहीं किए तो उनको भी आप याद कर लीजिएगा। पिछले जो असबाक है उन असबाक को भी आप क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं।